गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 5:25 सुबह के एंड टुडे आई जस्ट वोक अप एंड थॉट लेट्स रिकॉर्ड अ डे इन द लाइफ ऑफ अ जर्मन स्टूडेंट। तो हियर आई एम स्पॉन्टेनियसली रिकॉर्डिंग दिस व्लॉग टू टेल यू कि नॉर्मली यहाँ पे दिनचर्या कैसे होता है जर्मनी में, स्पेशली ऑफ अ स्टूडेंट। एंड या आज वेंसडे है, सो इट्स अ मिड वीक, सो आई विल बी टू रिकॉर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि यहाँ पे वीकडे कैसा होता है। Normally I wake up around 5:45, but Aaj Bello, our cat, woke us up quite early. So I thought let's take advantage of this time and start our day with doing some German practice. जैसे मैंने कहा कि सुबह के 5:30 बजने वाले हैं और यहाँ पे ऑलरेडी दिन आना शुरू हो गया है। समर्स में इट्स दैट्स बिग एडवांटेज कि यहाँ पे दिन जल्दी आ जाता है, तो इससे आप ज़्यादा अच्छा फील करते हो। बिकॉज विंटर्स में जब 5:30 होता है इट्स पिच डार्क एंड यू आर अनेबल टू मोटिवेट योरसेल्फ टू वेक अप एंड डू थिंग्स। बट अभी हम करेंगे जर्मन प्रैक्टिस बिकॉज मेरा एग्ज़ाम है इस वीकेंड। सो या जॉइन मी इन डूइंग सम जर्मन। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है अगर आपको जर्मन जल्दी सीखनी है, इज़ कि इफ़ यू थिंक इन हिंदी and then write in German or speak in German, so it's much faster because Hindi is quite close to German as compared to English, especially the sentence structure, because normally German में the verb is either on the second place or it goes in the end. और हिंदी में मैंने बहुत नोटिस करा है कि the word है या मैं ये करना चाहता हूँ, so who is also a verb, right, जो हमेशा end में जाता है। तो yeah, let's get into some German practice. मैंने क्या करा, अभी मैंने करी है राइटिंग प्रैक्टिस, व्हिच आई विल शो यू। तो क्योंकि मेरा एक्चुअल एग्ज़ाम है इसलिए मैंने कुछ चीज़ें राइटिंग में प्रैक्टिस करी हैं जो एक ईमेल में या फिर एक फोरम में हमको लिखनी होती हैं। द गैप हियर इज़ कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स you might not use it in a real practical corporate environment, but to pass this exam, which is a exam for corporate German or German for an office, they test you with a forum writing part कि आपकी कंपनी में एक forum है and you need to like explain some of the ideas and some of the opinions that you have. Then you have a typical email writing part. तो if you can spot me of my mistake, because I know कि कुछ words हैं जो मैं normally type करता हूँ, जब आप type करते हैं तो of course the word editor shouts out your mistake, but when you actually use a pen and pencil, then वो spelling थोड़ी they're a bit different. But yeah, if you can spot any of my mistakes in these writing part, then do mention in the comment section. I'll be happy to learn from my mistakes. वैसे तो जर्मन में बहुत चीज़ें हैं जो थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं as compared to English, but the biggest thing that I feel is biggest challenge for me is a very small thing कि यहाँ पे the alphabets, right? तो A को जब हम यहाँ पे बोलते हैं, A को एज एन अल्फ़ाबेट हम आ बोलते हैं, E को एज एन अल्फ़ाबेट हम A बोलते हैं, एंड I को एज एन अल्फ़ाबेट हम E बोलते हैं। So when somebody spells out their name, they say my name is Aviral, I would say instead of Aviral, I would say A, V, V, E, which is I, Air, which is R, A again, which is A, and L, which is L. So थोड़ा बहुत when you meet somebody or you call somebody and they spell out their name and they have a lot of A, E, and I in their name, it kind of confuses me slightly. जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि इंग्लिश का A यहाँ होता है प्रोनाउंस आ। बेलो says good morning. Good morning बेलो। किसकी है? It's almost 5:45, so we time for gym.
आई थिंक बाय फार मेरी अब तक की बेस्ट इन्वेस्टमेंट रही है कॉफ़ी मशीन, बिकॉज कॉफ़ी is really good in the morning. Like I do not have it the first thing in the morning because फिर you get a very big high and then you crash. So I at least try to wait कि पहले जिम हो जाए, और जिम जाने के लिए भी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं बोलता हूँ कि जिम जाओ, फिर I will have some coffee. So that's also a good motivation for me to get my workout done. Let's see if I can make some latte art. I'm very bad at it, but I'll try to make a small heart. Did not work out though. Yeah, still need to practice my latte art, but cheers, huh? अभी बज रहे हैं 8:20 approximately and I have gotten ready for the day. आज का प्लान है कि मोस्टली टू स्टडी जर्मन बिकॉज एग्जाम है इस वीकेंड पे, जो मैंने मेंशन किया था कि आई एम टेकिंग अ कोर्स अबाउट बिजनेस जर्मन. तो इट्स अ स्पेशल कोर्स, इट्स कॉल्ड Berufssprach course which teaches you to understand the German you speak at workplaces. And yeah, थोड़ा सा ना जब सुबह उठता हूँ नॉर्मली तो आई डोंट यूज माई फोन दैट मच, बट इस ब्लॉग के लिए आई हैड टू start using my phone the first thing in the morning. So it's a big difference when you don't use your phone in the morning. Your mind is a bit at peace, at least for after an hour after waking up. If you don't use your phone, I think I feel a bit more balanced. But because I've been on screen since morning, I feel a bit fuzzy, to be honest. But yeah, I think it's just one-time thing. और आज I also meet a friend of mine to practice on speaking German because ये जो test है इसमें speaking part भी है. So yeah, I will take you there with me as well. तो मैं ये कोर्स क्यों कर रहा हूँ, टू गिव यू अ बिग बिट ऑफ अ बैकग्राउंड एज वेल, कि जैसे मैंने आई मेड अ वीडियो अबाउट द करंट जॉब मार्केट. तो ऑल्दो आई डिड गेट 2 जॉब ऑफर्स फ्रॉम कंपनीज, आई रियलाइज कि अगर मेरे को अपना फील्ड में आगे बढ़ना है या फिर चेंज करना है और टू गेट मोर टेक्निकल एक्सपर्टीज, तो इट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन माई स्किल सेट. मेरी एक्सपर्टीज़ नॉर्मली सेल्स एंड मार्केटिंग में है, जो मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ. आई वर्क इन 3 डिफरेंट कंपनीज हियर इन जर्मनी, बट उसमें इतने मज़े नहीं आ रहे. अब आई हैव ग्रेट स्किल सेट, आई ऑलरेडी अचीव्ड सीनियर लेवल स्टेटस, बट इसके बाद आई वुड हैव गॉन टू बी अ मैनेजर एंड परहैप्स लीड बिगर टीम्स. बट आई रियलाइज कि आई एम स्टिल क्वाइट यंग एंड I'm more inspired and more motivated to work in process-oriented places, जहाँ पे I can have a bigger impact in the team. And while sales and marketing is a good sector as well, and you have impact on the company by bringing in more customers and more revenue, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा to get more strategic roles in the future. तो इसलिए I decided to do my masters here in Berlin. उसके लिए I will make a separate video of which masters I'm applying to what I'm doing. But yeah, this year is about learning German better. जर्मन ऑलरेडी मेरे को अच्छी खासी आती है, बट Berufssprach जर्मन जो बोलते हैं या बिजनेस जर्मन जो बोलते हैं, दैट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम, होल डिफरेंट वोकैबुलरी एंड ऑल दोस थिंग्स. तो आई एम फोकसिंग ऑन दैट नाउ. और इसके बाद मेरा मास्टर शुरू होगा अक्टूबर में, where I will specialize in business processes and business intelligence along with informatic. So yeah, that'll be pretty interesting and I'm very excited for that as well. पर काम स्टार्ट करने से पहले हम लोग ब्रेकफास्ट बनाएंगे. मैंने रखी हैं इसके अंदर 2 ब्रोटशन. ब्रोटशन इज अ स्मॉल ब्रेड. तो जर्मनी में ब्रेड इज ब्रोड, और anything which is small you just put a shun to it, so CHN. So bread becomes brot, and Brotchen is just a small bread. I think that's one of the other similarities between German and Hindi, क्योंकि हिंदी में भी कोई छोटी चीज का नाम बड़ा होता है, जैसे bread, छोटी bread. So you add a word छोटी, and although you're trying to say कि कुछ चीज का छोटा वर्जन है, उसका नाम is bigger than the bigger version of that thing. I don't know if that makes sense to you. But yeah, German और हिंदी में काफ़ी similarities हैं when somebody thinks about it. And if you want to learn German, if you have Hindi as your first language, or if you know Sanskrit, it really becomes easier for you. Yeah, so this is how a Brotchen looks like when you cut it open. And the idea is हम एक special paste डालेंगे, which I made with some fish and sardine. So it's like a small sandwich, which I will have as my breakfast. Time to study some German, huh?
gerne die Hauptteil von Schluss. Hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass im Anfang finden Sie, anbei schicken wir Ihnen, nach Rücksprache mit meinem Chef teile ich Ihnen gerne mit, dass aufgrund Ihres interessanten Angebots अभी बज चुका है 1 और दोपहर के 1 बजे मेरी जर्मन प्रिपरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। मैंने बस बेसिकली रिवाइज करा, कुछ वोकैबुलरी और प्रैक्टिस करा स्पीकिंग का, बिकॉज एज आई सेड कि माई जर्मन इज़ ऑलरेडी क्वाइट गुड बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन माई कॉर्पोरेट जर्मन। सो अभी हम क्या करेंगे, हम यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस करेंगे और आज लंच खाने का टाइम नहीं है मेरे पास बिकॉज आई एम गोना गो मीट अ फ्रेंड टू प्रैक्टिस मोर जर्मन। सो या it's a very fast day, but thankfully आज शाम को I'll get a very delicious dinner by my fiance, so I can keep myself a bit hungry for that. I just want to show you this कि मास्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए I made this list of potential colleges जहाँ मुझे अप्लाई करना है, and most important is कि रीज़न क्या है वहाँ अप्लाई करने का, which I have to fill out afterwards because I don't want to just do a master's blindly. I want to at least understand कि इस master करने का क्या consequences हो सकते हैं मेरे लिए. So maybe I'll make a different video about how can you choose the right masters for yourself and what's the right methodology to choose a master program for yourself. If you're interested in a video like that, drop in the comments and I will document in detail कि how I choose my master program and what you should do as well, because all of these universities over here and all of these courses, they're all free. किसी में भी पैसे नहीं है इसमें. There is a semester fee, yes, around 300 euros maximum, but उसमें आपको एक टिकट मिल जाती है ट्रैवल की, पर बाकी सारा कोई इसमें सेमेस्टर फीस नहीं है, कुछ इसमें ट्यूशन फीस नहीं है. आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू रियली सी ऑब्वियसली कि फ्यूचर इज़ क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल, कल किसी ने देखा नहीं है, बट ब्लाइंडली अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दोगे एंड आपको एडमिशन मिल जाएगा और उसमें यू विल गो फॉर इट, तो यू माइट रिग्रेट इट आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज इट्स पॉसिबल कि आप पे करके आ रहे हो मास्टर्स के लिए एंड देन यू वुड फाइंड आउट कि यू डोंट रियली लाइक दैट प्रोग्राम, सो यू आर स्टक नाउ इन दैट मास्टर्स, और यू विल फाइंड आउट कि एक्चुअली इसके लिए जॉब्स ही नहीं है यहाँ पे और आपको पसंद भी नहीं है मास्टर्स, आपको करना पड़ रहा है बिकॉज आपका वीसा से लिंक्ड है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद अपनी रिसर्च करो. या that is something that I would tell anybody, even if you're in 10th standard or in 12th standard or have done your bachelor's and want to do your masters now, really sit down and do some brainstorming as to आपको कौन से skill sets चाहिए. And आजकल because of ChatGPT, if you have been using it quite diligently like I have, then you can also ask ChatGPT about what masters would it recommend you based on everything it knows about you. So that's also pretty cool. अभी हम लोग बाहर आए हुए हैं जर्मन पढ़ने के लिए, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे, सोचा कि मौसम का मजे भी उठाएंगे और जर्मन भी पढ़ लेंगे, तो लेट्स डू दैट एंड या आई सी यू इन अ बिट. टाइम हो रहा है अराउंड अभी 2:33. सी यू देन. जर्मन प्रैक्टिस खत्म फाइनली. हमने एक टेस्ट करा जो काफ़ी अच्छा गया एक्चुअली, सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टेस्ट. एंड अभी यहाँ पे बहुत अच्छे मौसम हुए हैं, सो आई एम गोइंग फॉर अ लिटिल वॉक. इट्स ऑलमोस्ट 4 PM. ब्लॉगिंग करते हैं, so you know you're more accountable for your days, so I feel कि बहुत कुछ कर लिया already because you feel you need to do stuff to show, right? So I don't know कि क्या करेंगे शाम को. vielleicht which is perhaps chill and rest and take it easy maybe. Let's see. काफ़ी green और काफ़ी pristine, काफ़ी pure है अभी मौसम. ये summers में it's very beautiful here, especially in Berlin. There are many parks and stuff, so it's nice to come out and walk around a bit. बर्लिन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज यही है कि यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स हैं एंड दिस इज फोक्स पार्क हाइसेनहाइडर. आई शो यू द मैप. दिस इज हाउ बिग द पार्क इज. हम लोग रेड डॉट पर हैं अभी सिर्फ यहाँ पे एंड इस सारा पार्क इतना ग्रीन और इतना बड़ा है. अभी मैं आऊँ यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग जगह पे बर्लिन की, जो आई थिंक इज वन ऑफ द मस्ट सी थिंग्स इन बर्लिन व्हिच मेनी पीपल मिस आउट ऑन. दिस इज एन abandoned airport. It's called Tempelhoferfeld and ये एयरपोर्ट था इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये बिल्कुल शहर के पीछे है. सारे घर वर बने हुए लोग रहते हैं एक्चुअली. एंड ये एयरपोर्ट बना था ड्यूरिंग द आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब जर्मनी 2 पार्ट्स में स्प्लिट था, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी. एंड बिकॉज वेस्ट बर्लिन थोड़ा कट ऑफ था पूरे दुनिया से,
तो यूएसए में सारे एलाइज ने ये एयरपोर्ट, मेनली यूएसए ने एयरपोर्ट बनाया था ताकि जो एलाइज थे वो यहाँ पे खाना वगैरह सप्लाई कर सके। तो द प्लेन यूज्ड टू कम फ्रॉम द यूएस, दैट फ्रांस और यूके। ये जैसे वेस्ट बर्लिन में खाना राशन सप्लाई वगैरह यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। एंड वहाँ पे जो बिल्डिंग दिखती है दूर, वो एयरपोर्ट की बिल्डिंग है। अभी आप तो जाएंगे बनाया नहीं होता, जो भी कभी कभी वो बिल्डिंग होती है टू शो कि उस जमाने में कैसे एयरपोर्ट्स होते थे और तो कैसा था इंफ्रास्ट्रक्चर। और दिस एयरपोर्ट वाज स्टिल फंक्शनल टिल द 2000s, पर फिर गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे क्योंकि घर वगैरह बहुत आसपास है, तो यहाँ पे सारी प्लेसेस वगैरह हैं, तो इट्स नॉट वेरी सेफ प्लेस टू फ्लाई। तो ये एयरपोर्ट पर बंद कर देगी उसके बाद। पर देखोगे आप तो यू कैन सी कि रख देगी सारे जो पेंट्स वगैरह हैं अभी यहाँ पे। और इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे बहुत लोग भागने आते हैं, मैं यहाँ पर्सनली भागने आता हूँ। आई थिंक सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस अराउंड 10 किलोमीटर है पूरा ये। और इफ यू लुक एट द सर्कमफ्रेंस पूरा उस बिल्डिंग के पास से होके पीछे जाके एंड वहाँ से पूरा होके इसका पूरा सर्कमफ्रेंस अराउंड 10 किलोमीटर का है। एंड यहाँ पे बहुत लोग काइट सर्फिंग भी करते हैं, सॉरी विंड सर्फिंग भी करते हैं, विच इज़ वो स्केट्स पहन के दे टेक देयर ग्लाइडर्स एंड दे डू दैट। अभी तो है नहीं यहाँ पे इतना कि मिड वीक है, बट वीकेंड पे आओगे तो बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं। यहाँ पे स्केट बोर्ड का भी एक पार्क है और नॉर्मली डॉग डॉग पार्क्स भी हैं। बट बिकॉज यहाँ पे मतलब अभी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, बट एज कम्पेयर टू वीकेंड काफ़ी कम लोग हैं। एक सिर्फ एक यहाँ पे लेफ्ट में देयर इज अ सेक्शन फॉर स्केटर्स। So this is the one of very beautiful places in Berlin. If you're never here, do definitely check it out. I wish I had my sunglasses, but yeah, it's quite sunny today. It's quite beautiful. पीछे वहाँ पे ना रनवे के एंड में लोग क्रिकेट भी खेलते हैं कभी कभी. So it's pretty cool over there as well. And yeah, a very very beautiful place to come and visit and have a picnic and have a drink with your friends if you have the time. As you can also see the Friendset Tool, ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको छोटी सी एंटीना दिख रहा है उसका। सो Friendset Tool इज बेसिकली टीवी टावर जो ईस्ट जर्मनी ने या फिर रशियन इन्फ्लुएंस यूएसएसआर इन्फ्लुएंस जर्मनी ने बनाया था। और वैसे इस जगह की इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि मोस्टली गवर्नमेंट भी ट्राई कर रहा था हमेशा बोर्डनर्स ने प्रोटेस्ट करा है कि कीप दिस प्लेस एज अ रिक्रिएशनल प्लेस, क्योंकि यहाँ पे वैसे गार्डन पे अलाउड नहीं है नॉर्मली। दैट्स आई थिंक दैट्स अ सर्विस कार जो सिर्फ यहाँ पे मेंटेनेंस करती हैं, बट यू कांट ड्राइव इन हियर। सो दिस प्लेस इज ओनली फॉर द रिक्रिएशन ऑफ द पीपल कैन कम हियर एंड एंजॉय दिस प्लेस। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी तो काफ़ी यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़ को वहाँ पे घर भी दिए थे जो मेक शिफ्ट हाउसेस थे। आई थिंक अभी यहाँ से हटा दिए या फिर कहीं उसके उस बिल्डिंग के आसपास होंगे जहाँ पे वाटर की टैंक है, वहाँ पे शायद अभी भी कुछ घर है। सो या दिस आल्सो वाज वेरी गुड स्पिरिट ऑफ बर्लिन कि पीपल ट्राई टू ऑलवेज प्रिजर्व व्हाट दे हैव एंड कीप द प्लेसेस इंटैक्ट ताकि दे कैन एंजॉय दिस प्लेसेस। आई थिंक इस जगह के लिए एक स्पेशल वीडियो बनती है बिकॉज इतना सब कुछ घूमने के लिए, और अभी मेरे पास एनर्जी और टाइम नहीं है कि मैं पूरा आपको एक कोना दिखाऊँ यहाँ का। बट इट्स अ वेरी कूल प्लेस टू कम एंड एंजॉय डेफिनेटली। आज काफ़ी बैक टू बैक हो गया दिन। It's almost 4:30, so I thought to take a little break and buy myself a little treat. So I've gotten this mango chocolate ice cream. There's a very famous, not a very famous, but a quite known chocolate ice cream place nearby. And yeah, time to relax a bit. Perfect. सोचो थोड़ा बात करें और आइसक्रीम खाएं साथ में। जर्मनी में आने के बहुत फ़ायदे हैं इन द सेंस कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, यू नो हाउ टू मैनेज योर टाइम। वरना अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं सो इट्स यू नो वेरी इजी टू जस्ट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। जैसे आज उठा हुआ है मेरे को, आई वोक अप एट 5:30, तो बैक टू बैक चीज़ें हैं, पूरा दिन ऑर्गेनाइज करना होता है, खाना बनाना होता है, घर साफ करना होता है, काफ़ी चीज़ें हैं। आई थिंक जर्मनी इज़ अ गुड प्लेस टू कम इन योर 20s ताकि यू लर्न द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, वरना you will never appreciate how much you can push yourself. अभी मेरा लाइफ प्लान ऐसा है कि
पिछले साल जब बिजनेस बंद हुआ तो आई वॉज डूइंग बोथ. आई वॉज हैविंग अ जॉब एंड ऑल्सो रनिंग माई बिजनेस पार्ट टाइम. फिर एट सम पॉइंट आई डिसाइडेड कि अगर बिजनेस को सेव करना है, बिजनेस को स्केल करना है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं उस पर पूरा फोकस करूँ. इसलिए आई क्विट माई जॉब एंड फोकस ऑन द बिजनेस. बट उसके बावजूद इट wasn't be I wasn't able to save it, which was quite to be really honest with you very shocking. बहुत चीज़ें सही, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा. आई थिंक इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, बट इट वाज रियली टफ, रियली डिमांडिंग. एंड उसके बाद से आई थिंक 1-2 महीने तक तो आई वाज रियली डिप्रेस्ड टू बी ऑनेस्ट, रियली इन शॉक, कि पहली बार पैसों का लॉस हुआ था जो खुद कमाए थे, यू नो. सो इट्स नॉट ईजी. I was applying for many jobs, as I said previously, and I got 2 offers as well. But they weren't in the field I wanted to work in. और अभी वैसे जॉब मार्केट भी काफ़ी टफ है, तो आई हैड टू रियली पुश फॉर दीज जॉब्स एंड तब जाके ऑफर्स मिले थे. तो अभी प्लान ऐसा है मेरा कि अभी मई चल रहा है एंड मेरा जर्मन एग्ज़ाम अगले अगले हफ्ते है. उसके बाद से आई गॉट माई सेल्फ इन अ कोडिंग स्कूल विच इज़ अ फ्री कोडिंग स्कूल. इट्स कॉल्ड 42 बर्लिन. अगर आप लोग बर्लिन में रहते हैं एंड यू वांट टू इंक्रीज योर टेक्निकल स्किल सेट, तो चेक दैट स्कूल आउट, बिकॉज उसमें यू लर्न अ लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. उसमें वी हैव अ 3 month ट्रायल पीरियड जहाँ पे आपको रोज जाके काम करना होता है. यू नीड टू डू प्रोजेक्ट्स एंड इफ यू पास दोज 3 months ओनली देन दे लेट यू इन. तो उसमें मैंने लास्ट ईयर व्हेन आई हैड सम टाइम, आई हैड 3 weeks का वहाँ टेस्ट होता है. So I had 3 weeks to spend over there and I got into the school. But because of my German exam, I had paused it for a while. And abhi after the exam, I will resume that school. And the plan is कि May से लेके September तक, I will go to that school and increase my technical skills. And then October से मेरा master's शुरू हो जाएगा. So I'll focus more on masters then. And इस दौरान, इस दरमियान, I will be increasing my German knowledge, German level, especially working German, and also need to pick up French now because I'm also getting married this year to a French girl and अभी French भी सीखनी पड़ेगी. तो मतलब वो ये है कि जब बोलते हैं ना कि 20s में आपको बहुत चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, तो मेरे एक्सपीरियंस में तो मेरे बहुत दोस्त ऐसे भी जिन्होंने सिर्फ एक चीज़ पकड़ी जब से वो 16 साल के थे, 17 साल के थे. दे ओनली केप्ट एट वन स्किल, वन थिंग, एंड they're doing very well now because they only kept at one single focus, like they had laser sharp focus on one thing. मेरे केस में I was doing a lot of things. I think if you listen to Gary Vee, he says he try a lot of things in your 20s, and I fall in that category. I launched a book in 2017. I launched another book in 2019. I was also trying to like launch my YouTube channel back then, but उस time पे I was more into poetry and abstract videos, जो I don't think people really liked or enjoyed. Then yeah, bachelor's करा, jobs करी, business करा. बट एक होता है ना कि नीड टू कीप ऑन ऑलवेज गोइंग एंड स्ट्राइविंग फॉरवर्ड. वो करना पड़ता है लाइफ में, वरना you just can't give up, you know. There's the only difference between you and a failure is your ability to not give up, right? बाकी I just said कि I launched a book. तो इसी बार में मैंने बुक लॉन्च की थी एक्चुअली. This is Keats Bar in Berlin. This was the first bar which I came to when I first arrived in Berlin. And I think 4 years later, I launched a book over here. So a lot of memories in Berlin, a lot of striving, a lot of hustle. And yeah, it's in this beautiful, beautiful neighborhood out here. I बज चुके हैं शाम के 5 और it's quite funny because of this vlog, I'm so aware of each and every hour of the day कि I feel कि I need to do something every hour of the day. I feel very productive and I don't even know कि मुझे आगे क्या करना चाहिए because I feel I have to do something special for the vlog. So I think I have cracked the code of life, guys. Live every day as if you're filming a vlog because तभी आपको हर एक घंटे कुछ करने का motivation रहेगा. And yeah, I think I'll play with Bello a bit. I haven't given him much attention these days. I've been quite busy actually. So let's do that. अभी बज रहे हैं 6:15 ऑलमोस्ट एंड नाउ इट्स टाइम टू मेक और प्रिपेयर फॉर डिनर. जैसे मैंने पहले बताया था कि आज हम खाएंगे बर्गर जो मेरी फियांसे बनाएगी, बट उसके लिए मेरे को थोड़ा बहुत प्रेप करना पड़ेगा. सो आई नीड टू कट दीज एंड या दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग अब्रॉड
ऑल बाय योरसेल्फ और विद योर पार्टनर कि यहाँ सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, खाना बनाने से सफाई करने तक, जिसमें मज़े भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है. Once you get a hang of it, it's really fun to make your own food. And Berlin में, to make things interesting, we use HelloFresh. I don't know if you know about HelloFresh, but it's a meal kit company. I used to work for them as well, actually. And what they do is they send you a meal kit every single week with recipes in it, ताकि आपको रोज रोज ना सोचना पड़े कि हम क्या बनाएं खाने में. So it's pretty cool because that's HelloFresh. If you are in Berlin, try them out because फिर हमें ऐसी recipes मिल जाती हैं and उसमें पूरे instructions होते हैं कि कैसे कैसे खाना बनेगा. They also give us the ingredients and इसमें फिर we know what to eat, we know what to make, we know what to cook. We don't have to think too much, just do. But आज हम खाएंगे burger जो लोहन बनाती है, काफ़ी delicious. That reminds me, I need to get my burger patty also because I don't eat meat. I try to only eat fish for protein. So I have to get vegetarian burger patty. And Bella wants to help me. Huh? Bella, you want to help me? Ale, cook. Make food for me. Okay, let's come down. Choo-choo. Oh, I will let Bella out. Go man, go. जाओ बाहर जाओ. जब मैं नया जर्मनी आया था तो मैंने बहुत सारा अनाप शनाप खाया था बिकॉज आप नए नए मूव करते हो, then you don't know what to eat. तो if you are in Germany already, the one thing I'm sure you must have had is durum or doner, which is a Turkish delicacy. It's a German delicacy invented by the Turkish people over here. तो हालांकि इट्स क्वाइट डिबेटेबल कि दुरुम कहाँ से आता है, डोनर कहाँ से आता है, बट एज फार एज आई नो इट वाज अ टर्किश कम्युनिटी इन जर्मनी. जर्मनी में इतने टर्किश कम्युनिटी क्यों है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बहुत सारी यहाँ पे सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गई थी तो जर्मनी नीडेड अ लॉट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स टू कम इन एंड रीबिल्ड द सिटीज़. एंड उसके लिए दे इन्वाइटेड अ लॉट ऑफ देयर वाज अ स्पेशल टर्म फॉर इट, गेस्ट वर्कर्स, or in German gast workers, and they were primarily Turkish people, also some Italians, also some Vietnamese if I'm not wrong, and then these people came here and they became a very important part of the community, and they invented doner and durum, which is essentially meat and bread, although there are also vegetarian versions of it. It's a pretty good meal to have. When I moved to Berlin 8 years back, it costed €3.50 in Berlin to have a doner, और अभी उसका प्राइस हो गया है €5. So yeah, महंगाई and inflation is on the rise here as well, but not as much as in other places. पता है खुद का काम करने से क्या फ़ायदा भी होता है कि अगर आप if you're one of the lucky people who do not have to make your own food wherever you live, then I think it becomes very difficult to take a break from a screen in your day because everything is done on a screen these days and काम से लेके एंटरटेनमेंट तक सब कुछ स्क्रीन के थ्रू ही होता है. जब काम कर रहे हो तो आप एक्सेल को देख रहे हो या फिर आप कोड को देख रहे हो या फिर आप रिपोर्ट्स को देख रहे हो, और जब आप आराम कर रहे हो तो आप या तो नेटफ्लिक्स देख रहे हो या फिर आप टीवी देख रहे हो या फिर आप कुछ गेम्स खेल रहे हो कंप्यूटर पे. और जब खुद का काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है फॉर एग्जांपल, तो इट्स अ गुड वे टू लाइक रिलैक्स. जर्मन में बोलते हैं abzuschalten और abschalten, which means to cut off and after a long day of work not think and do some physical work, ताकि आपको थोड़ा आराम मिले, आपका ब्रेन 24 घंटे काम नहीं करता रहे और थोड़ा आपको ब्रेक मिले. हालांकि आज मैं abschalten नहीं कर पा रहा बिकॉज वीडियो के चक्कर में,
बट या आई होप कि आप थोड़े बहुत इंसाइट्स लें और अपनी लाइफ अगर आपको जर्मनी में इमेजिन करनी है तो शायद इट वुड बी अ बिट लाइक माइन। हालांकि आई वुड एडमिट कि आई एम टुडे इज़ अ वेरी आइडियल डे, क्योंकि जल्दी उठ भी गया, फिटनेस भी हो गई, पढ़ाई भी कर ली, एप्लीकेशंस भी कर लिया यूनिवर्सिटी के, दोस्त से भी मिल लिया, घूम भी लिया, आइसक्रीम भी खा लिया। तो हर रोज़ इतना पैक नहीं होता है, बट या अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट इट कुड बी। अभी शाम को आई गेस आई एम गोइंग टू ऑल्सो apply on more applications because कुछ universities में they need letter of motivation, which is not a very usual thing, but कुछ universities में they require it because competition बहुत है। इस university में it's Hochschule Wissenschafts und Rechts, which translates to University of Applied Sciences, Business and Law, and this university has no tuition fee, बट यहाँ पे सीट्स काफ़ी कम है। आई थिंक मेरे कोर्स के लिए जो मुझे इंटरेस्ट है 20 सीट्स हैं सिर्फ, और एज पर देयर स्टैट्स आउट ऑफ द 6 पीपल हु अप्लाइज ओनली 1 पर्सन गेट्स अ सीट। तो आई नीड टू मेक श्योर कि मेरा मोटिवेशन लेटर अच्छा खासा हो ताकि दे लेट मी इन डू माई मास्टर्स। बट अगर वहाँ नहीं हुआ तो कुछ बैकअप यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बट दैट्स वन ऑफ माई टॉप प्रेफरेंसेस क्योंकि कोर्स इज़ इंटरेस्टिंग and yeah, might help me progress with my life in Berlin. Okay, भी काटते हैं प्याज। मेरे को इंस्ट्रक्शंस मिले हैं वैसे काटने के ठीक से। I need to cut them a certain way. I need to make sure I don't fuck it up. वैसे ये प्याज बहुत बड़ा नहीं है क्या as per Indian standards, but it's a special onion. It's not a normal everyday onion. It's a special burger onion. I think it's grown in the region. बर्लिन की पता है कि उसका नाम, इस शहर का नाम बर्लिन क्यों पड़ा? बिकॉज और इस शहर का सिंबल बेयर्स है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे बहुत सारे, आई थिंक दैट्स द स्टोरी राइट, इस जगह बहुत सारे बेयर या भालू पाए गए थे और उसी के लिंग्विस्टिक कॉनोटेशंस की वजह से इस जगह का नाम बर्लिन पड़ा। जहाँ मैं रहता हूँ वैसे एक्चुअली नॉय खोलोन, इट्स अ बिट हार्ड टू प्रोनाउंस बिकॉज इसमें एक जर्मन की मात्रा है। दिस सिटी गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द सिटी ऑफ क्लोन, एंड यहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स को लाके एस्टैब्लिश किया था, दैट्स व्हाई दे नेम्ड इट नॉयकोलन। एंड इस जगह की इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे बार्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, सो इट्स प्रीटी कूल टू गो आउट एंड ईट आउटसाइड। अभी मैं सोच रहा हूँ बेलो का टाइम होने वाला है खाना खाने का, एंड ही इज़ वेरी पंचुअल। आई थिंक इज़ ऑल्सो वेरी जर्मन इन दैट रिगार्ड। इसको 6:30-7 बजते ही खाना चाहिए होता है, एंड ही सेंसेस इट कि अभी टाइम हो गया खाना खाने का, एंड देन ही ट्राइज टू गेट योर अटेंशन कि आप इनको खाना दे दो, ट्राइज टू बार्गेन कि आप इनको खाना थोड़ा जल्दी दे दो, यू नो। बट इज क्यूट। हाँ, इंडिया में कभी मेरे पास कैट पालने का इंटरेस्ट नहीं था। आई नेवर थॉट आई विल हैव अ कैट बिकॉज आई डोंट नो, इन माय हाउसहोल्ड कैट्स adopting cats wasn't a culture, but I'm glad I did, you know. काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है when you have somebody to care for and love, and somebody who loves you back unconditionally. So yeah, it's quite nice actually. My first ever pet. No, I had a dog in India who either got kidnapped or ran away. Never solved the mystery of what happened to him. I hope wherever you are, Boxy, you are good and doing well. Normally इस टाइम पे मैं पूरा खाना प्रिपेयर करता हूँ, which takes me around an hour and a half or 2, sometimes even 3 if it's a complicated. When I say 3 hours, I mean everything from chopping the vegetables to cooking to cleaning after that. But आज because it's not my turn to cook, I just needed to help in some chopping, which took me like 10 minutes or so. So I can chill after this and work on my applications.
बर्तन भी साफ करो, खाना भी खुद बनाओ, बट इतना बुरा भी नहीं है, मतलब वी गेट यूज्ड टू इट। दिस रिमाइंड्स मी, जब मैं श्वाइनफुट में था, अपना बैचलर्स कर रहा था, तो आई गॉट अ जॉब इन अ जर्मन बेकरी, और उस टाइम पे माय जर्मन वाज एट लाइक A1 A2, तो आई कुडंट स्पीक जर्मन दैट वेल, एंड वहाँ पे बहुत सारे मेरे कोवर्कर्स जर्मन ही थे, तो आई कुडंट टॉक टू देम, बट इंटरेस्टिंगली they all knew Shah Rukh Khan's song, like all the Shah Rukh Khan movies से गाने, they knew them, so we could sing together, but we couldn't talk with each other. काफी interesting था वो भी। Shah Rukh Khan is a very big icon in Germany as well. I think many Germans admire him, and I was reading an article or looking at an interview where they said that the reason they like Shah Rukh Khan so much is because his movies makes them cry and makes them feel emotions. It's a very funny thing to say, because I made a separate video about how to make German friends and why Germans tend to be a bit more stoic and pragmatic. They might seem emotionless, but ऐसा नहीं है actually. These are like big stereotypes. Germans are lovely people. They show emotions, of course, like any other human being, and they are fun to hang out with. I mean, of course, every country has different sorts of people. But yeah, all in all, Germans are quite nice. It's almost time for Bello's food. 6:37. It's actually 7, but just look at the way he will react when I will say la pâté, which is French for the patty, which is his food. It's just that doesn't matter. Just see the way he reacts, huh? Bello, la pâté, Bello. Come, la pâté, Bello, pâté. You want it? Okay, I give you la pâté. I don't know if you can hear him, but cats, when they're happy, they purr. They have this sound जहाँ पे लगता है कि इनका engine on हो गया है, and they purr, which shows that they're happy. And of course, he's happy to get his food. That's his pâté. Yes, Bello, you have your food. Patience is virtue, my boy. Ale, one up. Last task, Ashka, is to work on a bit on my master applications. Kyunki I need to prepare a 2 letter of motivation, which should be easy, but I don't want to use ChatGPT. मेरे को अपना authentic self लिखना है. हालांकि I can use ChatGPT to like proofread and correct some grammar if I need to. But yeah, उसके अलावा I think मैंने पहले भी बोला है, वीडियो पे मेंशन करा है कि आजकल मार्केट डाउन है, जॉब मार्केट, तो टेक्निकल स्किल्स इकट्ठी करो, मेक श्योर आपकी मास्टर्स में टेक्निकल स्किल्स हो। MBA का एक्चुअली पता है क्या है, MBA इट्स वेरी फ्यू पीपल नो दिस, बट MBA की वैल्यू इतनी नहीं है स्पेशली जर्मनी में, क्योंकि यूरोपियन यूनिवर्सिटीज दे गिव मास्टर्स आइदर इन साइंस और आर्ट्स, एंड MBA की वैल्यू जितनी US में है उतनी आई डोंट थिंक जर्मनी में तो है, स्पेशली हमारा पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं MBA के लिए, स्पेशली जर्मनी से, तो आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स राइट। I'll tell you why. Especially after the rise of AI and the way it's progressing, most of the consultants ki jobs could be done by AI, because AI can analyze data, AI can do a lot of things that consultants cannot spot. Perhaps, maybe I'm a bit misinformed. So educate me in the comments if you want to. और MBA के बाद आपके पास, अगर आपके पास MBA है
और आपके पास टेक की स्किल्स है, लाइक आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको डेटाबेस हैंडलिंग आता है, आपको कुछ भी टेक्निकल स्किल्स आते हैं, देन मे बी एमबीए कैन गिव यू अ स्लाइट एज कि यू नो हाउ टू डू स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, थिंक स्ट्रेटेजिकली एंड ऑल्सो यूज दीज टेक्निकल स्किल सेट. बट आई डोंट थिंक सिर्फ एमबीए करना अभी आपके एडवांटेज पे होगा. So the best thing that you could do right now, if you're trying to gain skills and be ready for the European job market, is pick up German or any European language for sure. Pick up technical skills and get work experience. Get a experience, work experience, where you can show that you took some projects and you. This also helps me because मेरा जो statement of purpose है इसमें मैं mention करूँगा ये बात भी कि हालांकि मैंने काफ़ी काम experience इकट्ठा कर लिया है और I am technically abled and I have German. I think I can improve my technical skills even more to further be more productive and resourceful in the job market. And yeah, in doing so, I'm having this kombucha. Kombucha is quite nice. Helps you with your gut a lot. जो मेरा पहला business था, there was also an affiliation with a kombucha brewery. Uski video you will find somewhere. If I haven't said a million times in this video, but about that business you will find somewhere कि क्या हुआ उस business का. But the idea was quite simple, to make food, to sell fermented food with fermented drinks, and kombucha is a fermented drink, so we were selling dosas and idlis and fusion fermented foods between Indian food and Western food. So we're using Krauts. Krauts is fermented cabbage, जो जर्मनी में काफ़ी फेमस है एक्चुअली, लोग काफ़ी पसंद करते हैं, खाते हैं क्राउड्स. So we were doing all of these things, making different combination with krauts and dosas and yeah, it was a good venture. That venture introduced me to kombucha, which now I drink quite a lot. This is quite good for your body and for your gut. Actually काफ़ी अच्छा हुआ कि मैंने अपने मास्टर्स के लिए अभी और रिसर्च करी because I found a master's in TU Berlin. TU Berlin, if you don't know, is one of the most prestigious technical university in Berlin, जहाँ की डेडलाइन 15th मई की है, तो अभी 14th में है. तो yeah, I got lucky I guess. तो उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ अभी. And meanwhile मेरा बर्गर बन रहा है किचन में, so I'm excited to finish this application process because it's, number of tabs have opened up quite a lot. And yeah, then I will enjoy my burger. It's finally almost done, and here's the dinner. That's a day in my life, and I hope you enjoyed it.